Okay, I formally welcome you to the English essay session. This is the batch for English essay that would consist of around, let's say, 18 lectures, जिनको हमने मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है. Each lecture would be of, let's say, 45 to 50 minutes, and something different and unique will be discussed in each and every, let's say, lecture. I will be briefing you all the details about the whole session in just a while. But let me start with my formal introduction first. This is Mohammad Sharif. I have qualified CSS 2019 and have been allocated into prestigious police services of Pakistan. And I've been currently posted to the Balochistan province as part of my special training program and policy of hard area rule. Besides that, I have also qualified PMS 2019, CSS 2018, and I've been teaching particularly English essay for last 3 years. And the precise reasons why I've been teaching English essay are following. I've qualified essay for 4 consecutive times. So इसकी वजह से जो मेरा थोड़ा बहुत exposure है essay writing के हवाले से, I just believe that it is a bit unique and that must be actually transferred to the upcoming aspirants. पहला तो रीज़न ये है. सेकेंडली जो ऐसे राइटिंग की मतलब क्लासेस लेने के पीछे मकसद है वो ये है कि काफ़ी सारे जो एस्पायरेंट्स हैं उन्हें एक ड्यू गाइडलाइन जो है वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं. वी नो फॉर द फैक्ट कि जो रिजल्ट है उसमें 98% जो रेशियो है फेलियर का वो या तो इंग्लिश एसे में है या तो इंग्लिश कंपोजिशन में है. सो दिस इज द अदर रीजन कि मैंने चूंकि दोनों सब्जेक्ट्स में रिस्पेक्टिवली अगर मैं बात कर लूँ तो कंपोजिशन में 64, ऐसे में 52 हाईएस्ट इस तरीके से नंबर लिए लें, तो आई फील कि ये जो इस तरह का नॉलेज बेस है ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए. और तीसरी ये चीज़ कि आई ऑलवेज बिलीव इन अपडेटिंग थिंग्स, कि चीज़ें जब तक अपडेटेड मैनर में नहीं पढ़ाई जाएंगी, आई डोंट पर्सनली थिंक कि जो कैंडिडेट्स हैं वो बदलती हुई डायनामिक्स को समझ पाएंगे. So based on that, I qualified my first essay in 2019 CSS, 2018 CSS. वो था in fight against terrorism and corruption, it is imperative not to compromise on civil liberties and human rights. Well, that was a relatively tougher topic given the dynamics of the exam room. But with the blessings of Almighty and the continued practice, evaluation, and the approach, consistent approach that I had held regarding English, actually helped me out in actually cracking it in a possible manner. फिर 2018 का मैंने PMS दिया, then I attempted, they said demilitarization is a key to global peace and cooperation, and again that was a very unique experience. और उसके बाद तो ऐसा लगा कि अगर हम PMS का ऐसे क्वालिफाई कर लें तो I think CSS का ऐसे जो क्वालिफाई करना है वो मुश्किल नहीं होगा, because the nature of the topics was a bit tougher, the interpretation was a bit questionable, and the essay structure was a bit demanding. फिर अगेन तीसरी मरतबा जो है वो मैंने ऐसे लिखा अगेन एग्जाम रूम में, थर्ड ऐसे इन 2019 CSS, और वो था न्यू वॉर फ्रंट्स ला इन द इकोनॉमिक जोन्स. Now that was a relatively tougher topic in different senses of the term. For example, इसमें एक तो इशू ऑफ इंटरप्रिटेशन आ रहा था कि ये जो टर्म है इकोनॉमिक जोन्स, इससे क्या मुराद है, क्या इससे इंटरनल इकोनॉमिक जोन्स हैं, क्या इससे लेट्स से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिबेट है जो कि मैरीटाइम पॉलिटिक्स में रिसोर्सेज हैं, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन रीजन, वहाँ की डिबेट है रिलेटेड टू द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, या ब्रॉडर इकोनॉमिक वॉरफेयर की डिबेट है. सो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो उस पर्टिकुलर ऐसे में अगेन दैट वर वेरी टेक्निकल. कंपेयर अगर मैं उसे करूँ 2018 के, तो उसमें एक मसला था 2018 वाले में, टॉपिक जो था कि इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड करप्शन इट इज इम्पेरेटिव नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स. कि एक तो लिंक डेवलप करना है कि हाउ करप्शन एंड टेररिज्म आर इंटरलिंक्ड, and that is why civil liberties and human rights must not to be compromised in actually eradicating them. So terrorism के खिलाफ तो चले, काउंटर टेररिज्म हमें जो जो एक स्ट्रैटेजी है उसमें नजर आती है, बट इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट टू एक्चुअली एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन the terrorism and the corruption. So I just treated it as a sister crime of, let's say, terrorism, and that was part of the UN counter-terrorism strategy. कि मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जितना भी करप्शन का पैसा है that is basically used to finance the terrorist activities. अच्छा, 2019 के ऐसे के बाद अगेन 2019 का फिर PMS अगेन आ गया, उसका फिर मैंने एक ऐसा अटेम्प्ट किया, दैट वाज राइज ऑफ इस्लामोफोबिया.
अब इन चारों जो अटेम्प्ट्स थे ऐसे के आई अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड देम ऑल एंड क्वालिफाइड देम इन वन गो। दैट इज समथिंग अनयूजुअल, पर्टिकुलरली जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसए के पेपर की बात करें। बाकी पेपर्स जो हैं वो कैंडिडेट्स पास कर लेते हैं, बट अगेन essay in its own right is unique in many ways। अब जो इस पूरी मतलब ये जो मैंने आपको 4 essays बताए, मेरे कुछ उसमें कंक्लूजन्स थे कि why and how you should actually be preparing। वो मैं एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर लूँ ब्रीफली, आई विल टच इट अपॉन एंड देन आई विल ब्रीफ यू विद द हेल्प ऑफ द स्लाइड्स एज टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन। नंबर फर्स्ट थिंग, ऐसे के पेपर में आपने मतलब जब भी आपने जो 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 टॉपिक है वो अटेम्प्ट करना है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन टू यू इज द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। That is very much important because that is the work of just 5 minutes. But whatever choice you make actually governs your 2 hours and 50 minutes. For example, कोई और ऐसे भी ऑप्ट किया जा सकता था, let's say rise of Islamophobia के अलावा, let's say emerging power of social media prospects and challenges, let's say कोई और टॉपिक भी अटेम्प्ट किया जा सकता था जैसे CPEC is a game changer या global warming myths or reality। So whatever topic you may choose, keep following things into the account। Number one, कि आपका जो भी टॉपिक है क्या उसमें जो टेक्निकल टर्म है वो आपको क्लियर है या नहीं है, और अगर एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो उनमें क्या कोई कोरिलेशन है, कोई लिंक है जो कि आपको मालूम नहीं है, मालूम जो है वो करना है, या वो लिंक आपने स्टैब्लिश करना है, या उस लिंक के स्टैब्लिश किए बगैर आप पूरा ऐसे नहीं कर पा सकते। सेकंड एक इम्पॉर्टेंट जो टेक अवे है वो ये है कि सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक में इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ। फॉर एग्जांपल, मैंने काफी सारे जो कैंडिडेट्स थे इन तमाम तर ईयर्स में जिनके साथ इंटरेक्शन हुआ या अभी होता है, तो मैंने एक चीज नोट की है कि उनसे बात एक डिफरेंट पूछी गई है, लेकिन उस मेन बात को वो ब्रीफली टच करते हैं ऐसे में, ज्यादातर ऐसे उस बात के ऊपर नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल, एक ऐसे था, डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। So one of the candidates actually wrote almost everything about what is terrorism, its historical background, its roots, its causes, the implications of the terrorism, and he briefly touched this very aspect that how dialogue is the best course to combat terrorism। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ऐसे को यूं ले लें, न्यू वॉर फ्रंट्स लाइन द इकोनॉमिक जोन्स, तो अगर हम सारी डिबेट वॉर के ऊपर करें, व्हाट इज वॉर, व्हाट आर द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द वॉर, व्हाट इज जस्ट वॉर थ्योरी, what is a preemptive war, what is a war that is fought for the expansionist designs, etc. So we are not actually touching something that has been asked from us। तो सेकंड मेजर टेक अवे आप याद रख लें कि आप वो बात आंसर करें जो कि आपसे पूछी गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2021 के एसेस की बात करें तो एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो किसी एक हद तक महदूद नहीं होने चाहिए, वो यूनिवर्सल होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द ह्यूमन राइट्स क्या है क्या नहीं है, अदरवाइज आप इस ऐसे को अटेम्प्ट ना करें। सेकंड, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसे है पर मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन। यहाँ पे मैं आपको अपना थर्ड टेक अवे बताऊंगा कि जब तक आपके पास जो टॉपिक है उसमें की टर्म आपको पता नहीं है, आप वो टॉपिक अटेम्प्ट ना करें। अगर आपको पर्पसिव एजुकेशन ये जो टर्म है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो यू विल डेफिनेटली फेल। दिस इज एग्जैक्टली ट्रू with the topic demilitarization is a key to global peace and cooperation। If you guys don't know what demilitarization is in first place, it would be folly to be wise to expect that you will be qualifying this particular essay, क्योंकि आपको बेस लाइन ही नहीं पता तो उस essay को अटेम्प्ट करना बहुत ही मुश्किल या उससे भी ज्यादा जो है वो फिर नामुमकिन हो जाएगा। नेक्स्ट टेक अवे अगर हम बात कर लें तो वो ये है कि टॉपिक की सिलेक्शन में आपने इस हद तक वाइज होना है कि वो टॉपिक आपने चूज कर लिया जो कि आपके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर आपके पास 2 से 3 टॉपिक्स हैं जो कि आपके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, तब वो टॉपिक अटेम्प्ट करें जो कि रिलेटिवली कम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो 2018 का ऐसे मैंने आपको बताया, दैट वाज रिलेटिवली लीस्ट अटेम्प्टेड एन ऐसे, उसमें फिर ये होता है कि आपके जो स्कोर के चांसेस हैं वो फिर बेहतर हो जाते हैं। बट देन दैट इज इन दी बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोस कि भाई आपने इतनी माशाल्लाह अच्छी तैयारी की थी कि आपको 1 या 2 से ज्यादा ऐसे आ रहे थे एंड यू हैड अ चॉइस। सो इन ऐसे पेपर चॉइस इज समथिंग ब्लेसिंग। ये जनरल डायनामिक्स हैं। उसके बाद ये जो है वो आपके फिर आ जाते हैं कि द मैनर इन विच यू आर्टिकुलेट योर थीसिस स्टेटमेंट, द मैनर इन विच यू आर्टिकुलेट योर एस्पेक्ट्स एंड सब एस्पेक्ट्स, द मैनर इन विच यू ब्रेनस्टॉर्म देम, एंड फाइनली राइट अ फेयर आउटलाइन।
सो वंस यू आर डन विद दिस, आपको यहाँ पे टाइम लगना चाहिए कोई रफली 45 to 50 मिनट्स। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, डिफरेंट पीपल राइट डिफरेंट जो है वो types of introductions. For example, that can be a universal method, that can be a funnel method, that can be a general to specific method, but I was more comfortable with the anecdotal method of writing an introductory paragraph. तो इसमें जो टेक अवे है अब इस बात से वो ये है कि आप कोई भी मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट के यू आर गुड एट दैट, यू आर एक्सपर्ट एट दैट। आपको पता है कि उसके अंदर जो टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं वो क्या हैं और उनको कैसे किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ्स के तौर पर प्ले आउट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट, यू कैन एक्चुअली underline the basic principle of writing, and that is read something that is worth writing and write something that is worth reading. So you are confident of the fact that whatever you are writing is actually worth reading. उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके बॉडी पैराग्राफ्स। ठीक है, उसकी अगर मैं दो बातें इंपॉर्टेंट आपसे कर लूं तो एक तो उन कैंडिडेट्स के लिए बड़ा मसला हो जाता है जिन्होंने एक ही टॉपिक चूज किया होता है, अक्सरियत ने वहां पे कंटेंट में डिफरेंस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर 2021 की अगर हम बात कर लें तो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाज द सेफेस्ट पॉसिबल टॉपिक अंडर द सन। और अगर हम 20,000 कैंडिडेट्स में से बात करें तो वी कैन रफली एस्टिमेट के अराउंड 12,000 14,000 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ये ऐसे अटेम्प्ट किया होगा। द प्रिसाइज रीजन इज कि ये हर एक बैकग्राउंड वाले इंडिविजुअल के लिए कंपैरेटिवली आसान ही था और मोर और लेस करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही था। आईआर वालों के लिए तो ये एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स वालों के लिए ये वैसा ही टॉपिक, एक जनरल टॉपिक है जो कि वैसे ही तैयार होना चाहिए। द पीपल हु आर गुड एट प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स वो तो इस टॉपिक को वैसे ही ओमिट नहीं कर सकते। तो मैं बताना यहाँ पे ये चाह रहा था कि हम जब एक टॉपिक जो है वो ऐसा पिक एंड चूज कर लेते हैं जो कि अक्सर ने अटेम्प्ट किया होता है, तो पैराग्राफ राइटिंग में हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि वी डू नॉट ऑफर अ न्यू आर्गुमेंट। फॉर एग्जांपल 1000 एसेस पढ़ के इस एक टॉपिक के ऊपर जब 1000 और एक ऐसे जब मेरा आ जाए तो व्हाट ए न्यू थिंग आई एम गोइंग टू ऑफर द एग्जामिनर। तो जो लोग जो है वो ये सारी डिबेट सुन रहे हैं, आई वुड रिकमेंड यू कि एसए के पेपर में फिर आप यहाँ पे ये बात लिख लें कि 3 चीजें हैं जो कि आपका एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं एसए के पेपर में। ए, द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक शुड बी अ बिट डिफरेंट। ठीक है, लेकिन अब इस पर्टिकुलर केस में हम क्या देखते हैं कि अगर हमने टॉपिक भी सेम सिलेक्ट कर लिया तो फिर क्या होगा, फिर सेकंड लेवल है ब्रिंग न्यू लेवल्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जो आपके लाइंस ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो रिलेटिवली यूनिक हो। जैसे दीगर लोगों के अगर फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं तो आप लोगों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ज्यादातर फिर क्या होने चाहिए, वो फैक्चुअल नहीं, वो फिर थ्योरेटिकल होने चाहिए और उनमें फैक्चुअल जस्ट एनालिसिस होनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इवन इफ योर आर्ग्यूमेंट्स आर सेम, जैसे आप सब लोगों का जो कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं, सब लोगों ने टॉपिक चूज कर लिया है, मिसाल के तौर पर फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, और आप सब लोगों का पहला आर्गुमेंट ये है कि द मेन रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल इज द फ्रीक्वेंट मिलिट्री इंटरवेंशन। ठीक है, तो अब तीसरी लेवल पे आ जाते हैं कि फिर अब कैसे आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन दैट थर्ड लेवल इज बेसिकली द मैनर इन विच यू एनालाइज दैट आर्गुमेंट। द एनालिसिस शुड बी very pithy, very clear, concise and relevant to the topic and added with the references regarding that particular topic. मिसाल के तौर पर एक इंडिविजुअल ये कह रहा है कि पाकिस्तान में मल्टीपल टाइम्स जो है वो सॉफ्ट हार्ड मार्शल लॉ लगाए या फिर इमरजेंसीज लगी हैं 1954, 58, 69, then there is a tell of all the military interventions that we have seen in Pakistan's politics. और हर बार जब भी मिलिट्री इंटरवेंशन होती तो जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था वो वीकन हो जाता। दिस कैटेगोरिकली शोज दैट डेमोक्रेसी हैज एक्चुअली been reduced to, let's say, rubber stamp in Pakistan because of, let's say, the military intervention. You can just argue like that. लेकिन एक और इंडिविजुअल जो कि कह रहा है कि देयर इज अ कॉजल लिंक, उसकी एनालिसिस आपसे डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ही राइट्स अ टॉपिक सेंटेंस दैट let's say frequent military interventions have derailed democratic dispensation in Pakistan. There is a causal link between the military intervention on one hand and the growth of the democratic dispensation on the other, and two are basically interlinked. The more democracy is deep rooted in the masses, the more military intervention will be less likely.
Over the course of time, Pakistan has witnessed a number of and a series of actually the martial laws. And each martial law has actually introduced a new form of the democratic setup, which in words of SM Ikram is as such that in Pakistan, dictatorial governments have tried to democratize the country, which has actually added to the woes of the democracy in Pakistan. In addition to that, Aisha Jalal in her book, Democracy and Authoritarianism in South Asia, argues that in Pakistan's political landscape, military technically enjoys veto power or the larger say in the affairs. So this basically shows that frequent military interventions in Pakistan have actually led to the erosion of democratic dispensation in the country. Sort of ये जो आपने argument लिखा, अब इस तरीके से हुआ क्या कि तीन लेवल से आपके पास, यहाँ आप अपने आप को टॉपिक में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेट्स से आप भी मेरी तरह है नहीं कर सके। सेकंड लेवल ये है कि आप फिर अपने आप को आर्गुमेंट की फॉर्म में डिफरेंशिएट कर सकें, वो सेकंड लेवल हो जाएगा। अगर आर्गुमेंट भी सेम है तो तीसरा लेवल ये कि कम से कम आप अपनी एनालिसिस को बेहतर करें। सो द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर क्वालिफाइंग एसे फॉर 4 consecutive times, one important reason had been the manner in which I have worked on my analysis. You must have a stance or a position on issues of the day. फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर कहा जाता है कि जो है वो मीनिंग पर्पस ऑफ एजुकेशन इसके ऊपर लिखें, तो यू मस्ट हैव अ स्टांस ऑफ योर ओन। अगर आपसे कहा जाता है कि colonial mentality impeding Pakistan's progress, तो you must have a stance of your own and that must be justifiable beyond reasonable doubt. तो वो अगर justifiable होगा तो वो फिर आपके लिए जो है वो ज्यादा बेहतर भी होगा, इफेक्टिव भी होगा and that would eventually fetch you good marks. उसके बाद फिर आपका conclusion टोटल लेसेस 3 घंटे का होता है, जिसमें आपने लेसे 2 hour 45 मिनट्स में से लिख लेना है, 10 मिनट में कंक्लूजन हो, 5 मिनट में आपने प्रूफ रीडिंग करनी हो। दैट इज द बेसिक एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग ऐसे इन एग्जाम रूम। अब यहाँ से हम अपनी गुफ्तगू स्लाइड्स की तरफ मूव करेंगे और इस प्रिंसिपल के साथ कि व्हाट यू डू इन एग्जाम रूम डिपेंड्स लार्जली ऑन व्हाट यू डू व्हेन यू आर नॉट इन एग्जाम रूम। यानी कि आप जो भी इम्तिहान में अपना अमल जो है वो जाहिर करते हैं, उसका दारोमदार इस बात के ऊपर होता है कि जब आप इम्तिहान में नहीं थे तो आपने कैसे तैयारी की थी। तो जब आप इम्तिहान में अभी नहीं हैं और इस सेशन को बेसिकली परसू कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक यू टू नो व्हाट वी आर गोइंग टू discuss in this particular session and why that is in line with the examiner report, which has highlighted multiple flaws in the approach and attitude of the CSS aspirants regarding English essay. So here we go for the slides-based approach and understanding how this whole session would move and in what manner. इस सेशन में हम तो एक तो बात करेंगे एक्सप्रेशन के ऊपर कि आप अपना एक्सप्रेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हाउ कैन यू एक्चुअली एक्सप्रेस वन थिंग इन डिफरेंट वेज एंड हाउ द रूम फॉर रिपीटेशन कैन एक्चुअली बी एड्रेस्ड इन ड्यू मैनर। सेकंड हम बात करेंगे ऐसे के स्ट्रक्चर के बारे में, इसके ऊपर हमारे होंगे कोई 10 से 12 लेक्चर्स होंगे जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम ऐसे को पहले डिफरेंट हिस्सों में तोड़कर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर टूल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, जैसे मैंने आपको बात की कि व्हाट आर वेरियस वेज ऑफ एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट, तो आप लोगों का एनालिसिस कैसे इंप्रूव हो, पहले जो गुफ्तगू होगी हमारी 2 से 3 दिन, दैट वुड बी डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर थॉट। तो वंस वी आर डन विद द टूल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग के बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं, अपने एनालिसिस कैसे इंप्रूव करना है, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे आउटलाइन मेकिंग स्किल्स के ऊपर। फिर आपके जो तकरीबन 7 लेक्चर्स होंगे वो आउटलाइन मेकिंग स्किल्स से होंगे, कोई 20 टॉपिक्स होंगे जिनकी मैं डिटेल्ड आउटलाइन आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, ताकि यू मे हैव अ फेयर आइडिया ऑफ नॉट ओनली व्हाट आउटलाइन इज but at the same time but also at the same time you must know certain ideas and arguments that you think that we as mentors think के भाई उसमें inculcate किए जा सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ, और जब हम ये सीखेंगे तो उसमें हम ऑब्वियसली डिफरेंट जो मेथोडोलॉजीज हैं राइटिंग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ विद द यूनिवर्सल मेथड, राइटिंग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ विद द जनरल टू स्पेसिफिक मेथड, एनेक्डोटल मेथड, कोटेशनल मेथड, इवन फाइनल मेथड, हम इन चीज़ों को फिर बात करेंगे।
अब उसके बाद हम फिर कंक्लूजन की बात करेंगे। जब हम यहाँ तक पढ़ लेंगे तो हमारे कुल 12 लेक्चर्स हो जाएंगे और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इस पूरे डिबेट को समराइज करेंगे किसी एक जगह पे और हम फिर पढ़ेंगे एसे की ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज जब हमारा पूरा ऐसे हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऐसे के साथ हम इससे के जो टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज हैं इनके ऊपर भी बात करेंगे। अब जैसे इस गुफ्तगू में तो मैंने ब्रीफली टच किया है, लेकिन जब हम डिटेल में बात करेंगे तो हमें माइन्यूट से माइन्यूट एनालिसिस ध्यान में रखनी होगी। फॉर एग्जांपल कि आउटलाइन अगर शुरू में 1.5 घंटे में हम बना रहे हैं तो उसे 15 मिनट्स तक कैसे लेके आना है। इंट्रोडक्शन के लिए जब हम परेशान होते हैं कि पहला जुमला क्या लिखें, वहां पे हम किस तरीके से प्रैक्टिस करें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की कि we may have a requisite level of command over writing introductory paragraph and that too in just 10 to 15 minutes। फिर कंक्लूजन के बारे में जो डिबेट है, फिर प्रूफ रीडिंग के बारे में जो डिस्कशन है, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट विल बी डिस्कस्ड। फिर हम जो एक लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14, वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें कंटेंट ऑफ द एसे कि जी देखें, अब आपने एसे की जो फंडामेंटल्स हैं वो सीख लिए हैं। तो फंडामेंटल सिर्फ ये नहीं है कि आप में से कोई बिगनर है तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन आप में से किसी ने अगर एक बार ऐसे क्वालिफाई भी कर लिया ना, तो यू वुड फाइंड अ ड्रामेटिक डिफरेंस के एसे की जो अप्रोच है वो बेसिकली है क्या। और देखें एक एक चीज के ऊपर वी विल बी टॉकिंग फॉर लेट्स से 45 to 50 मिनट्स और इवन 1 hour एंड मोर इन सर्टेन केसेस। तो आई थिंक दैट वुड बी समथिंग दैट वुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू इंडिविजुअल्स कि आपको पता चले एंड वंस एंड फॉर ऑल। मैं बिलीव करता हूं कि mentorship simply means one-stop solution to all problems. At least we must have a position on each and everything that we are studying in each and every day. Each lecture must stand on its own and you guys must be able to comprehend what this whole debate and lecture series was all about. तो कंटेंट के ऊपर हम बात करेंगे कि कंटेंट डेवलप कैसे करते हैं, आइडिएशन एंड आर्गुमेंटेशन की स्ट्रैटेजीज क्या है। एक तो मैंने आपको वो बात की कि हम आउटलाइन मेकिंग स्किल्स में काफी सारी इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसके बाद यानी कि सेशन के बाद उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट कंटेंट के बाद चलें जी हम बात करेंगे फिर न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल्स की। काफ़ी लोगों को पढ़ना ही नहीं आता, पढ़ते कैसे हैं, रीडिंग स्किल्स क्या है वही नहीं पता। तो कंटेंट के फौरन बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर रीडिंग स्किल्स, फिर हम पढ़ेंगे व्हाट आर न्यूज़पेपर रीडिंग स्ट्रैटेजीज। ये हमारी दो चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद हम फिर ये करेंगे कि इस पूरे सेशन में आपकी जो चीज़ें हैं जो हैं कुछ असेस भी होंगी। जैसे देयर विल बी असेसमेंट ऑफ 2 फुल लेंथ एसेज एंड 5 इंट्रोडक्शंस एंड आउटलाइंस। तो फॉर एग्जांपल ये ऐसे होगा कि जब हम आउटलाइन मेकिंग स्किल्स के ऊपर बात कर रहे होंगे तो मैं आपको जब जैसे ही आउटलाइंस पूरी हो जाएंगी और इंट्रोडक्शन, तो आप कोई 5 इंट्रोडक्शन और आउटलाइन लिख के मुझे भेजेंगे और वो व्हाट्सएप के थ्रू आप भेजेंगे अपने कलम से लिख के। कलम से लिखने के बाद आप उन्हें कन्वर्ट करेंगे जो है वो तस्वीर में, और तस्वीर को फिर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और वो फिर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भेज देंगे। वंस वी आर डन विद दैट होल सेशन, तो फिर आप आखिर में कोई 2 फुल लेंथ एसेज जो है वो मुझे चेक करा सकते हैं। आप में से फॉर एग्जांपल वो लोग जो समझते हैं कि उन्होंने इस तरह का सेशन लिया हुआ है पहले, या ये जो हम बातें पढ़ रहे हैं चले हमें तो पता है, उनके लिए फिर ये कि दे कैन जस्ट ज्वाइन अस फॉर द असेसमेंट, और एक मंथली असेसमेंट में फिर हमें ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं उनके वीकली बेसिस पे एक फुल लेंथ ऐसे, एक इंट्रोडक्शन आउटलाइन, एक प्रेसी, एक कॉम्प्रिहेंशन, ये 4 चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल से एक हफ्ते में बहुत है। विद अ थीमेटिक अप्रोच जो है वो असेस कर लूंगा एंड दैट वुड बी वन वे, वन ऑफ द मेनी वेज टू लर्न ऐसे। तो ये हमारी स्कीम ऑफ द थिंग्स ऐसे होगी। टोटल हमारे जो है वो 18 लेक्चर्स होंगे एंड मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी। यहाँ पे से यूँ समझ लें कि हफ्ते में 7 दिन है तो हम कैन भी 5 दिन जो है वो हमारी क्लासेस चलेंगी। तो कोई 4 हफ्ते हम अप्रैल की एंड तक इंशाल्लाह ये फिर हमारा सेशन पूरा हो जाएगा। हर महीने में एक ही सेशन होगा। एक और जो काफ़ी सारी कैंडिडेट्स की जो है वो जनरल डिमांड थी कि सर हमें पास्ट पेपर्स की एनालिसिस भी कराएं। हालांकि जो मैंने 20 टॉपिक्स चूज़ किए हैं वो भी पास्ट पेपर्स ही हैं जिनके ऊपर मैं बात करता हूँ डिटेल में, लेकिन वो चूंकि 2021 के जो पेपर है वो थोड़ा सा डिफरेंट आया है, तो पता नहीं किस मैनर में यूनिक है। इट इज़ यूनिक इन मैनी वेज। तो एक लेक्चर हमारा इस बात के ऊपर होगा कि हाउ CSS 2021 ऐसे पेपर is different, and we will be deconstructing all the topics, almost all the topics in our hour long debate and discussion। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये जो हमारा सेशन है वो है क्या, हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे द टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी क्लियर फ्रॉम द वेरी आउटसेट।
अच्छा, टॉपिक्स कौन से करेंगे ये थोड़े से ज़हन में रख लें कि टॉपिक्स हम बेसिक भी करेंगे, हम जो है वो डिफ़िकल्ट भी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव टॉपिक्स लाइक पॉवर्टी, टेररिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म, फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम, एथनिक इश्यूज़ इन आवर कंट्री। ये वो टॉपिक है जो कि इशू बेस्ड भी हैं, कंटेम्प्रेरी नेचर के ऊपर भी हैं। We will add more debate through the help of following topics like crisis of national integration, rise of Islamophobia, crisis of good governance, ये टॉपिक। अब इन टॉपिक्स को मैंने इसलिए भी थोड़ा सा इनिशियली चूज किया है क्योंकि इनमें जो आपके आर्गुमेंट्स इस्तेमाल होंगे वो मोर और लेस डिफरेंट टॉपिक्स और भी हैं जिनमें आपके इस्तेमाल होंगे। वो यानी वो इस ख्याल से लिए गए हैं ताकि हम इनके ऊपर कम से कम हमारे पास जब आउटलाइंस होंगी तो we will be able to actually incorporate these arguments into our other debates as well, but in just a different way। ठीक है, ओके। जब हम ये टॉपिक कर लेंगे देन फिर एक और टॉपिक है वेस्टर्न परसेप्शन ऑफ इस्लाम। ये 10 टॉपिक्स हो जाएंगे हमारे। जब आउटलाइन मेकिंग डिस्कस के 3 दिन होंगे, 3 टॉपिक्स हम पर डे करेंगे, कोशिश करेंगे। फिर हम जो टॉपिक्स की नेचर है उसे थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ मूव करेंगे, जैसे यूएन सक्सेस और फेल्यूर, जेंडर इक्वलिटी, मेथड ग्लोबल वार्मिंग, फैक्टर फिक्शन, आईएमएफ ऐसे पीस कर्स आर अ ब्लेसिंग। ये सारे टॉपिक्स कोई ऐसे टॉपिक्स नहीं जो कि हमने अपनी तरफ से बनाए। दीज ऑल द टॉपिक्स हैव बीन आस्क्ड इन पास्ट पेपर्स। जस्ट ओपन दी पास्ट पेपर्स एंड यू विल फाइंड दीज टॉपिक्स। तो ये सिर्फ हम जनरली डिस्कस नहीं करेंगे कि देखें ग्लोबल वार्मिंग होती है, 2-4 कॉजेज हैं, 2-4 इफेक्ट्स हैं, 2-4 सोल्यूशंस हैं। नो, a complete outline with 5 to 10 arguments on each aspect will be discussed। मसलन यूएन फेल्यूर हम कोई 12 फेल्यूर्स डिस्कस करेंगे, 5 रीजंस ऑफ फेल्यूर डिस्कस करेंगे, 8 सॉल्यूशंस देंगे, ताकि इस सेशन का मकसद सिर्फ आपके लिए एक बेस लाइन डेवलप करना नहीं हो, बल्कि आपके लिए स्ट्रक्चर के साथ आइडिएशन एंड आर्गुमेंटेशन की जो डोमेन है ना वो भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि तभी जाके आप ऐसे की जो काम है उन्हें सीरियस लेंगे। आई पीटी द कैंडिडेट जो कैसे के पेपर को सीरियस नहीं लेते और वो हार्डली जब उनकी तैयारी के आखिरी दिन आ जाते हैं उसकी तैयारी तब शुरू कर लेते हैं। This attitude must be condemned in all its forms and manifestations, like we condemn any other activity। देखें, तैयारी करें तो आप ढंग से करें, वरना तैयारी ना करें। There are many candidates who have been wasting time, be just one of them। सीएसएस की तैयारी को अगर आप एक रेफ्यूज के तौर पर ले रहे हैं कि आप दुनिया जहान से तंग आ गए और सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, तो सॉरी, दिस इज नॉट फॉर द रेफ्यूज। ये कोई पनाहगाह नहीं है, ये कोई मुसाफिर खाना नहीं है। दैट इज अ सीरियस बिजनेस एंड यू हैव टू टैक इट हेड ऑन। अच्छा, उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स, पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, इसके ऊपर बात करेंगे। और चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनकी फेयर आउटलाइन आपके साथ डिस्कस होगी, एंड दैट इन अ डिटेल मैनर। उसके बाद है कुछ और डिफिकल्ट टॉपिक्स, मतलब 3 दिन और हमारे जब इन टॉपिक्स में हो गए तो फिर नए टॉपिक। और मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, इज colonial mentality impeding Pakistan's progress, is world peace possible, has social media killed free speech, is populism a threat to democracy, does fake news undermine the idea of democracy, and then there will be other topics। इनके साथ हम कोई और रैंडम टॉपिक्स भी होंगे जिनके ऊपर बात करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर बात करेंगे। आप वैसे ही कोई रैंडम टॉपिक एक दिन प्रपोज करेंगे, हम अगले दिन उसके ऊपर भी बात करेंगे। आई वुड ट्राई टू मेक द डिस्कशन मोर डेमोक्रेटिक एंड दैट वुड वर्क इन अ हाइब्रिड मॉडल। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जनरल कुछ जो है वो हमारी बातें हैं। जैसे इंग्लिश ऐसे जो है उसमें एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेक्स इंग्लिश ऐसे डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। एक तो हमें ये पता होना चाहिए। मैं आपको जनरली बता दूं कि अभी तक हमने जो डिस्कशन की है ना उससे आपको एक तो आइडिया हो गया होगा कि ऐसे इज नॉट एज ईजियर अ सब्जेक्ट एज इट सीम्स। ठीक है, 98% जो फेलियर रेशियो है that actually says something about the seriousness and the approach of the candidates towards English essay। You cannot take it for granted। Take essay for granted and whole CS exam will take you for granted in a tit for tat move। सो इंग्लिश ऐसे दीगर सब्जेक्ट से बड़ा यूनिक है। एक ही सवाल होता है, दीगर पेपर में 7 सवाल होते हैं, 4 करने होते हैं। एमसीक्यूज भी नहीं होते, दीगर में एमसीक्यूज भी होते हैं। इसमें अंग्रेजी जज होती है, दीगर पेपर में अंग्रेजी आपकी जज नहीं हो रही होती। फिर एक और डिफरेंस ये भी है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि दैट इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल योर स्किल्स। बाकी पेपर्स में वो फिर जो है वो इतनी सारी जो स्किल्स हैं, सेट ऑफ स्किल्स हैं, वो जज नहीं हो रही होती।
तो ऐसे का जो पेपर है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन मेनी वेज एंड दैट इज व्हाई इट मस्ट बी टेकन सीरियसली सीरियसली सीरियसली। उसके बाद cracking essay before essay cracks you, what does it demand? That's an important question. Essay demands from you three things: structure, organization and content, जिनके बारे में मैंने बात कर ली है कि we will be discussing all those things in a detailed manner. So how can this session be helpful for you? You can just decide that in all possible ways. जो जो मैंने आपको बातें brief की हैं, in case you think they can help you be part of the session, we will have a regular class tomorrow at the given time. ठीक है, चलें जी हम बात कर लेते हैं थोड़ी ऐसे के पेपर में। और कि आपको जो CSS की कोर्स आउटलाइन है ना, उसमें ऐसे के बारे में सिर्फ एक ही गाइडलाइन मिलेगी कि जी कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट वन और मोर फुल एसेज इन इंग्लिश। A wide choice of topics will be given, जो कि 10 टॉपिक्स होते हैं। Candidates are expected to reflect comprehensive and research-based knowledge on a selected topic. जैसे मैंने आपको कहा कि आपने रेफरेंसेस का इस्तेमाल करना है, आपने यूनिक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है, तो दैट विल बी हेल्पफुल। तो 3 डिमांड्स बेसिकली आपने पूरी करनी है: स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और कंटेंट होना चाहिए। बाकी फिर उसमें ये वाली बात आप ऐड कर लेंगे, कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन एंड एक्सप्रेशन, जिसकी मैंने बात की कि वी विल टॉक दिस थिंग इन अवर डिक्शन ऑफ एसे का जो लेक्चर होगा कि डिक्शन हम एसे का कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश एसे राइटिंग विल बी एग्जामिन्ड। तो ये चीजें हैं जो कि आप देख सकते हैं। अब ऐसे के पेपर में अगर आप चाहते हैं कि यू में परफॉर्म इन अ बेटर मैनर, तो दीगर पेपर के मुकाबले में ऐसे में ये डिफरेंसेस आप दोबारा से नोट कर लें। ऐसे के पेपर में यू नीड टू हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। एरर फ्री इंग्लिश होनी चाहिए, कोई मास्टर वोकैबुलरी वाली अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। सेंटेंस शॉर्ट लिखते हैं, लॉन्ग लिखते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, सिर्फ ये है कि उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो। दीगर पेपर में आप ग्रामर की गलतियां करेंगे, वो आपको 10 में से 9 नंबर ले लेगा, दे देगा, लेकिन ही विल नॉट फेल यू। बट इन ऐसे पेपर 5-6 गलतियां, 7-8 गलतियां जाएंगी, दैट विल शो योर लेट्स से command over English language as very poor. वन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन होता है, क्लैरिटी और इंटरप्रिटेशन के मसाइल होते हैं। 2019 में हम अपीयर हुए थे, एक टॉपिक था आर्ट्स फॉर पीस। तो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने लिखा कि देयर आर डिफरेंट आर्ट्स फॉर पीस। एक है डिप्लोमेटिक आर्ट फॉर पीस, एक है मिलिट्री आर्ट फॉर पीस, एक है इकोनॉमिक आर्ट फॉर पीस। टोटली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक। तो इंटरप्रिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म में बताई। मीनिंग पर्पस ऑफ एजुकेशन की क्या इंटरप्रिटेशन होगी उसमें बताई। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। या जो जो टॉपिक्स फॉर एग्जांपल मैंने अटेम्प्ट किए थे उनके बारे में आपको बताया कि you actually need to have a proper interpretation कि what is the topic demanding from you. इंग्लिश ऐसे का पेपर दीगर सब्जेक्ट से थोड़ा सा इस वजह से भी डिफरेंट है कि इट्स अनप्रेडिक्टेबल। द ओनली थिंग प्रेडिक्टेबल इन ऐसे पेपर इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कि हमें नहीं पता क्या होगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि एग्जाम वाले दिन एग्जाम रूम के बाहर बातें कर रहे होते हैं कि मैंने तो 20 ऐसे प्रैक्टिस किए हैं, तो ऐसे तो मेरे लिए कोई मसला है ही नहीं। ऐसे सब लोगों के लिए मसला है। इवन मैंने 4 मरतबा क्वालिफाई किया है, अगर मैं 5वीं मरतबा भी अगर दोबारा कभी अपीयर हुआ, जो कि मेरा कभी ख्याल है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह के अपीयर होना है, लेकिन even if somebody has to appear after even qualifying essay for consecutive times, you would have to go back to the basics. आप हर एक चीज को ट्यून अप करेंगे, फाइन ट्यून करेंगे, तभी जाके आप ऐसे के पेपर में अपीयर हो। सिंपल लाइन है, टेक ऐसे सीरियसली एंड CSS एग्जाम विल टेक यू सीरियसली। टेक ऐसे फॉर ग्रांटेड एंड होल एग्जाम विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। ठीक है, कभी कभी और पेपर हैं वो फॉर ग्रांटेड लिए जाते हैं, जैसे मैं इस्लामियात में फेल हुआ था फर्स्ट टाइम में, सो दैट वाज अ ट्रेजिक एक्सपीरियंस एज वेल। कि देखें आप सबसे मुश्किल पेपर हैं दो, उनमें 52 और 64 नंबर आपने लिए हैं ऐसे और कंपो में रिस्पेक्टिवली, बट यू हैव फेल्ड इस्लामाबाद बाय जस्ट 3 नंबर्स, 37 नंबर, एंड यू कांट हेल्प एक्चुअली। तो ये पूरा प्रोसेस फिर रिपीट करना होता है। चलें जी, उसके बाद फिर ये कि psychological fear associated with the English essay is way let's say out of proportions. ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, नींद नहीं आती, स्लीपिंग साइकिल ख़राब हुआ होता है और टेंशन ही पड़ी होती है, और दिल ही दिल में ख्याल आ रहा होता है कि मैं तो शहीद हूँ, गाजी नहीं हूँ, मैंने तो फेल ही होना है, बस अल्लाह खैर करेगा, इसमें तो बेहतर हो जाएगा। सो यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एज वेल। जो नर्व्स का एग्ज़ाम है वो बेसिकली ऐसे की वजह से ही हम इसे कहते हैं।
किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, ऐसे एग्जामिनर रिपोर्ट हमें क्या बताती है। आप आई वुड रिकमेंड यू कि गो टू द वेबसाइट ऑफ एफपीएससी और वहाँ पे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो एग्जामिनर रिपोर्ट है ना, वो आप लाजमी पढ़िएगा। वो जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एक बेहतर मैनर में जो है वो असेस नहीं कर पाएंगे सिचुएशन को। मैं जब भी नया बैच शुरू करता हूँ तो उसमें ये चीज़ें लाजमी बताता हूँ। एग्जामिनर रिपोर्ट कहती है कि भाई ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग, इस तरह की एरर्स जिसकी हैं वो पहले वो ठीक करे, फिर पेपर में बैठे। आप अगर पेपर को ये समझ रहे हैं कि हम अपने आप को जज कर लेंगे, अपीयर हो जाते हैं, क्या हो जाता है, खैर है पहली अटेम्प्ट ट्राई के लिए होती है, नो, दैट इज द मिसगाइडेड अप्रोच, दैट इज द मिसप्लेस्ड अप्रोच। आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो विद दैट। आपका एक अटेम्प्ट आपकी लाइफ लाइन है। हाउ कैन यू जस्ट सेक्रीफाइस योर लाइफ लाइन? या फिर उन लोगों से पूछें जिनकी तीसरी अटेम्प्ट है। वन सेकंड ये है कि आप में से जो लोग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं वो अभी से तैयारी शुरू कर लें। जिन्होंने यूनिवर्सिटी में नहीं की उनके लिए भी दिस इज द राइट टाइम। और जो लोग फॉर एग्जांपल अपने 28 या 29 ईयर्स में, उनसे आप थोड़ा सा ना एक मुतासर भी हों कि आपने कभी भी अपने अटैम्प्ट को इतना आखिर तक नहीं लेके जाना। समझ रहे हैं आप लोग, 26 27 तक आप अपने अटैम्प्ट्स को जो है वो पूरा कर लें। आप रूटीन में इस हद तक तैयारी कर लें कि एक दो अटैम्प्ट तो आपकी कंसेक्टिव हो जाए ना, तो उसका फिर फायदा ही होता है, क्योंकि आप फिर गैप लेंगे 1 1.5 साल का, 2 साल का, वो फिर सारी चीजें तब्दील हो जाती हैं, फ्लो नहीं रहता, मोटिवेशन नहीं रहती, वो दिमाग उस तरीके से क्रिटिकल एनालिसिस नहीं डेवलप हो रही होती। मेजोरिटी केसेस में ऐसा होता है कि आप प्रोग्रेशन की बजाय इंटेलेक्चुअल रिग्रेशन में चले जाते हैं। तो आप एक टाइमलाइन बना लें, आपने कब अपीयर होना है, और पहले ये इन एरर्स के ऊपर काम कर लें। अटेम्प्ट को आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। आउटलाइंस के बारे में यू शुड बी वेरी मच स्ट्रिक्ट। They should neither be too structured, too short or unstructured, not overly explained। ठीक है, वो इतनी होनी चाहिए कि उनमें जो आप बात कहना चाह रहे हैं दैट इज अंडरस्टैंडेबल। क्रैम्ड अप मटेरियल ऐसे में ना हो। लॉन्ग वर द डेज जब हम कोई 5 6 ऐसे याद कर लेते थे और वो पास हो जाते थे, जैसे 2015 तक ऐसे थे। वो टॉप 20 ऐसे की कोई बुक पब्लिश हो जाती थी, इंट्रोडक्शन किसी एक ऐसे का जो है वो याद कर लिया, पैराग्राफ्स याद कर जाते थे लोग और वहां पे लिख लेते थे। अब ऐसा नहीं है। ऐसे आपने कितने भी याद की क्यों ना हो, ऐसे आपने विद इन एग्जाम रूम में ही लिखना है, यानी कि उस टॉपिक की डायनामिक्स के मुताबिक ही लिखना है। क्रैम्ड अप मटेरियल वुड नेसेसरली लीड यू टू द फेलियर। रिक्वायर्ड लेंथ पूरी नहीं कर पाते, ये फिर आपकी प्रैक्टिस और असेसमेंट का मसला है। ठीक है कि आप इतने ऐसे लिखे ही नहीं है कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप एक इफेक्टिव मैनर में अपनी तैयारी को आगे लेके जाएं। देन देयर आर रैंडम थॉट्स विदाउट लॉजिकल रीजनिंग और फैक्ट्स। जैसे मैंने आपको कहा कि आर्गुमेंट एक ही है कि हाउ डेमोक्रेसी हैज फेल्ड इन पाकिस्तान, बट द एनालिसिस एक्चुअली क्रिएट्स अ डिफरेंस। और वो फिर मैं आपको इस सेशन में जो है सारी चीजें पढ़ाऊंगा। सो व्हाट डज इट डिमांड, मैं दोबारा से इसे रीस्टैब्लिश कर लेता हूँ। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट। ठीक है, और ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात है नहीं। तो आप इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, आई वुड हेल्प यू ग्रो इन दैट एंड वी विल लर्न a lot many things। एक और कंपोनेंट आप याद रख लें, इवन इफ यू आर पार्ट ऑफ द सेशन और नॉट, आपको जो चीज़ आ रही है ना वो तब तक आपकी इम्प्रोवाइज नहीं होगी जब आप उसकी फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप उसके असेसमेंट नहीं कराएंगे। इवन इफ आपको ऐसे की फंडामेंटल्स पता है, बेसिक्स पता है, पहले कोई 8 10 ऐसे लिखे भी है ना, तो आप इस खाम ख्याली में ना रहिएगा कि बस ऐसे तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। नो, इट इज नॉट सो। आपने हद से ज्यादा इस बात का ख्याल करना है कि आपने आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं हो जाना, आउट ऑफ असेसमेंट नहीं हो जाना, और खुद असेसमेंट ना कीजिएगा, किसी बेहतर इंसान से असेसमेंट कराइएगा जो कि आपको फीडबैक दे। और जब भी आपको नेगेटिव फीडबैक मिले ना, आप खुश हुआ करें। हमारे यहाँ CSS कैंडिडेट्स बहुत पढ़ लिख जाते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि यार किसी ने उनके ऊपर थोड़ी सी तनकीद कर ली है ना, अगर वो जस्टिफाइबल है, जस्टिफाइबली क्यों ना, वो फिर नाराज हो जाते हैं कि यार खुद बड़ा पढ़ा लिखा है, मुझे जो है वो क्रिटिसाइज करा है। नो, वी लर्न थ्रू क्रिटिसिज्म, वी लर्न थ्रू दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जिनको जिनको आपने जहन में रखना है। द ओनली वे यू कैन डिफीट योर हार्ड लक इज हार्ड लक इज योर हार्ड लेबर, एंड you can overcome your fear. There is one way of overcoming that fear. It is simply face it. We will start our session with this quote, long live struggle, because without struggle this is, nothing is achievable. And that was my motto that when I used to prepare myself.
So what is next? You want to join this session? This session is for you. You can just text over this particular number on WhatsApp. You will be registered. कल वाली class जो होगी वो सिर्फ registered candidates के लिए होगी. No other or non-registered or non-serious candidate will be allowed to join class. That would be about the sanctity of the class as well. ठीक है? So you can just text on this number on WhatsApp or otherwise, and then you will be sent the details to join this particular session. This is all from my side. आप लोगों को कोई question है तो you can ask.